Around 70% of the construction work of the third terminal has already been completed, and the terminal will have a soft opening in October, the CIAB chief told the Daily Star. The third terminal is being built at a cost of 21,399 crore, and 70% of the money is coming from Japan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा दूसरा एहसान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। तो खैर, जो आज वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बांग्लादेश एक ऐसा एयरपोर्ट बना रहा है जो एशिया में अब किसी के पास बिल्कुल। इससे पहले सिंगापुर का है, दुनिया में अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन उससे भी अच्छा बांग्लादेश बना रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मुर्तजा नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया नहीं कह, बल्कि अमेरिकन मीडिया की ये रिपोर्ट है। यूएस मीडिया की एक रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ी शानदार रिपोर्ट बनाई है, वो हम देखेंगे बिल्कुल कि किस तरह से सिंगापुर, जिस डिजाइनर ने बनाया एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट, आपको पता है बड़ा खूबसूरत बनाया है उसने, वो ही डिजाइनर अब ढाका एयरपोर्ट टर्मिनल भी बना रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं अपने व्यूवर्स को हमारे नए यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल पे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, जो है बांग्लादेश जो है इससे पहले भी कॉक्स बाजार वाला जो एयरपोर्ट बनाया है वो भी बहुत ही वंडरफुल है, वो भी पानी के ऊपर है। ऐसा भी पूरी दुनिया में अभी तक कहीं भी नहीं है। लेकिन अब एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है बांग्लादेश, सिंगापुर के तर्ज तामीर पर। जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे अच्छा एयरपोर्ट माना जाता है। लेकिन जिन जो वहां पे इंजीनियर्स हैं, जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, वही लोग जो हैं वो बांग्लादेश का जो है ढाका का एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और 70% ऑलमोस्ट ये काम मुकम्मल हो चुका है। जापान के साथ मिलकर ये काम हो रहा है। तो खैर, पहले अब वीडियो देखते हैं अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर किस तरह से डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है वो बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड Japanese company is likely to get the job of operating the third terminal of Hazrat Shah Jalal International Airport, HSIA, which includes ground and cargo handling. However, administrative, security, immigration, and customs services will be provided by officials and employees of the government agencies concerned. Civil Aviation Authority of Bangladesh, CIAAB, has recently appointed Japanese consulting firm Nippon Koei to determine how an operating company would run the airport, how profits and expenditures would be shared, and who would be responsible for what, sources at CAB said. Several domestic and foreign companies have shown interest in operating the third terminal. The Japanese company has already submitted a proposal for this, and a meeting was recently held at the Prime Minister's office to discuss the proposal. Sources at the Civil Aviation Ministry said the government is positive about the proposal. The government in January approved in principle that the third terminal would be operated and maintained under public-private partnership. CAAB said it runs all airports in the country, including HSIA, with its own manpower. Biman does ground and cargo handling in all 8 airports. Amid widespread dissatisfaction of government high-ups over poor luggage handling services, CIAB decided to outsource the job to a company that can deliver international standard services and serve passengers in the best possible way. Passengers at the HSIA have been facing problems like mishandling of luggage for years. Sometimes passengers have to wait more than an hour after arrival to get their luggage. Although Biman is trying to improve the quality of services, it's not enough. We want to ensure international standard ground handling services at the third terminal, CAAB Chairman Air Vice Marshal M.F. Adur Rahman said, adding at the same time, it will help increase the government's income. CAAB is now conducting a study on how the work will be done, where money will be spent, and how CIAB will earn. Around 70% of the construction work of the third terminal has already been completed, and the terminal will have a soft opening in October, the CIAB chief told the Daily Star. The third terminal is being built at a cost of 21,399 crore, and 70% of the money is coming from Japan International Cooperation Agency, JICA, as loaned Mitsubishi and Fujita of Japan and Samsung of Korea are constructing the 3-story 2.
0.30 lake square meters terminal. It will have 115 check-in counters, 64 departure and 64 arrival immigration desks, 12 boarding bridges, and 16 carousels. It will also have a 5.42 lakh square meter apron for 37 aircraft and 63,000 square meter cargo complex. A new car park there will have space for 1,230 vehicles. जबरदस्त, कमाल है, क्या बात है यार। बिल्कुल देखें जो है ये इसकी ज़रूरत थी इस वक्त बांग्लादेश को, इस टाइप के एयरपोर्ट की। देखें जिस तरह से पूरी दुनिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होते हुए जा रहे हैं, इसी वजह से बांग्लादेश को ज़रूरत थी, क्योंकि अदर कंट्री से जो लोग आते हैं उन्हें अच्छा माहौल मिलना चाहिए, प्यारा जो खूबसूरत लेविश माहौल मिलना चाहिए। इसी वजह से जो है बांग्लादेश ने ये कदम उठाया है और बांग्लादेश का नाम जो है वो पूरी दुनिया में अब रोशन हो रहा है। बांग्लादेश के पास देखें साउथ एशिया में, सॉरी एशिया में ही बल्कि देखें जो बांग्लादेश बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है। मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट देखें, उसके बाद कर्नाफुली टनल देखें, पद्मा ब्रिज देखें, इसके बाद ये ढाका एयरपोर्ट देखें, कॉक्स बाजार देखें। ढाका एयरपोर्ट पता है आपको कि ये जो है ना अपना सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उससे भी बड़ा हो जाएगा जी। उसी तरह वो ही डिजाइन उसको आर्किटेक्चर ने जिसको उसको बनाया है ना, वो ही उसकी पूरी टीम आकर ढाका एयरपोर्ट को तैयार कर रही है। ये देखें कितना बड़ा माइलस्टोन है, बिल्कुल, और कितनी बड़ी ये बांग्लादेश की अचीवमेंट, बिल्कुल। और जापान के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहा है बांग्लादेश, और 70% उसमें बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि 70% जो मनी है, जो पैसा है, वो जापान इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए ना यूएस का मीडिया, अमेरिकन मीडिया इसको किस तरह से कवरेज दे रहा है। उसने बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके ऊपर, और वो बात कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं बांग्लादेश की इस अचीवमेंट। बिल्कुल, इससे एक और चीज ये भी तो साबित होती है ना कि बांग्लादेश का नाम सिर्फ एशिया में नहीं, साउथ एशिया में नहीं, पाकिस्तान ये वो हमारे कंट्रीज में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। देखें अमेरिका इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, कभी इसके ऊपर चाइना रिपोर्ट करता है, कभी कोई कंट्री करता है, बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर करते हैं रिपोर्ट्स। ब्लूमबर्ग को देखें, वो दुनिया का बड़ा मीडिया आउटलेट है, वो कर रहा है इसको रिपोर्ट। अब देखें बांग्लादेश का नाम जो है वो पूरी दुनिया में इस तरह से फैल रहा है जैसे एटम बॉम्ब चल जाए और उसकी हवा जिस तरह से फैलती है वैसे फैल गया, और पूरी दुनिया में रोशन कर लिया बांग्लादेश ने अपने नाम को। मुर्तजा, असल में बात बताऊं क्या, जब आप कोई भी काम करते हैं ना और ईमानदारी के साथ करते हैं, अपनी कौम के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं, और हार्ड वर्किंग, दुनिया फिर आपके लिए आवाजें उठाती है, बिल्कुल, फिर आपकी तारीफ एप्रिसिएशन करती है। यही वजह आप बांग्लादेश की लोग तारीफ कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बिल्कुल व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, एहसान रिएक्शन की टीम कोशिश करेगी कि आपके लिए कोई मुनफरिद यूनिक किस्म का जो कंटेंट है वो लेकर आए। सॉरी, एहसान खान ऑफिशियल की टीम जो है वो कोशिश किया करेगी कि आपके लिए जो अलग कंटेंट लेके आएंगे। एहसान खान ऑफिशियल, एहसान रिएक्शन, असल में टीम तो एक ही है ना। टीम हमने चैनल ये इसलिए रखा है कि इस पे हम आपसे कोई भी बात कर सकते हैं, अनस्क्रिप्टेड कर सकते हैं, आपसे हम गैर रस्मी गुफ्तगू कर सकते हैं, बिल्कुल, और कैजुअल अगर बैठे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे हमारी आम रूटीन क्या होती है। हम अपने व्लॉग्स डाला करेंगे इसके ऊपर, जब घूमने फिरने जाया करेंगे हम आपको सैर सपाटा भी करवाया करेंगे, पाकिस्तान के खूबसूरत सिटीज की आपको व्यू भी दिखाया करेंगे इंशाल्लाह। हमारे कैमरे के पीछे एक और साहब भी खड़े हों, वो भी कभी आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। चले मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।